of class 10th, welcome back to my channel. Today we are going to study chapter 2 part 3, that is Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. We have already studied some part of the chapter in the first part and then in the second part, and this is going to be the third and the last part for this chapter. So let's begin with the reading of the chapter. But before we start the reading of the third part, I would like to give you a summary of what we have already studied about. So in the first part, we studied about the system of apartheid, that is the system of racial discrimination, that is discrimination on the basis of color of the skin of the person, right? Then we studied about the inauguration day, that is the oath-taking ceremony of Nelson Mandela, 10th May 1994. Then in the next part we studied about some of the lines from the speech of Nelson Mandela that he used as an address after his oath taking. And then Nelson Mandela described about how the military and police officers and the army of South Africa saluted him and paid respect to the newly elected government, which was fairly and freely elected as a democratic government. And then he remembered the people who have lost their lives, who have sacrificed for gaining and for achieving this freedom, this liberty. So he has mentioned about a lot of people who had great courage, and then he talked about humanity. After talking about his fellow mates who struggled, who sacrificed their lives and their courage, he mentioned a very important line, which is, I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. ये बहुत important line है. And after that he talked about the humanity, कि हर इंसान में humanity होती है. He talked about a person who was the guard in the prison. He showed some amount of humanity towards Nelson Mandela and his friends. So Nelson Mandela has a strong belief that man's goodness is a flame that can be hidden but cannot be extinguished. So let's begin with the reading of the chapter from where we left in the last class. Yeah, page number 20. In life, every man has twin obligations. Obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. So according to Nelson Mandela, हर इंसान के दो तरह के दो तरह की obligations होती हैं. What is an obligation? Responsibility, ड्यूटी. सो हर इंसान की दो तरह की ड्यूटीज होती हैं लाइफ में. पहली ड्यूटी टुवर्ड्स हिज फैमिली, हिज पेरेंट्स, चिल्ड्रन, वाइफ, एंड दूसरी जो ड्यूटी होती है वो होती है टुवर्ड्स हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री. इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. सो एक जो नॉर्मल सिविल सोसाइटी होती है जहां पर लोगों को अपने राइट्स होते हैं, तो वो अपनी ड्यूटीज को बहुत इजीली निभा सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन एबिलिटी. जितनी उनकी एबिलिटी होती है, जितना वो कर सकते हैं, और जितनी उनकी इंक्लाइनेशन होती है टुवर्ड्स देयर ड्यूटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लाइनेशन? इट्स गिवन इन योर बुक. नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बिहेवियर. नॉर्मली अगर आपका वो बिहेवियर है, आपकी नेचुरल टेंडेंसी है कि आप अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करना चाहते हो, आप में एबिलिटी भी है, तो अगर आप एक नॉर्मल सिविल सोसाइटी में रहते हैं जहां पर आपको राइट्स हैं एक नॉर्मल लाइफ जीने के, तो उसमें आप अपनी ये दोनों ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स योर फैमिली ऑल्सो एंड टुवर्ड्स योर कंट्री ऑल्सो पूरी कर पाते हो. लेकिन साउथ अफ्रीका में आजादी से पहले का जो वक्त याद कर रहे हैं नेल्सन मंडेला, उस वक्त में बहुत डिफरेंस था. वो एक सिविल सोसाइटी नहीं थी, वहां बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था. तो वहां एक इंसान के लिए अपनी नॉर्मल बेसिक जो ऑब्लिगेशंस है, ड्यूटीज हैं टुवर्ड्स फैमिली एज वेल एज टुवर्ड्स कंट्री,
वो पूरी इंसान नहीं कर पाता था, स्पेशली जो ब्लैक पीपल थे. सो व्हाट नेल्सन मंडेला सेज अबाउट इट, बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. So नेल्सन मंडेला सेज दैट लेकिन एक नॉर्मल सिविल सोसाइटी में जरूर इंसान अपनी दोनों ऑब्लिगेशंस को इजीली फुलफिल कर पाता है अगर उसमें एबिलिटी हो उसको फुलफिल करने की. लेकिन साउथ अफ्रीका का केस बहुत डिफरेंट था. यहां पर मेरे जैसे लोग जो मेरी तरह एक ब्लैक फैमिली में पैदा हुए, द पीपल ऑफ माई बर्थ, मेरी तरह जो लोग जिन्होंने ब्लैक फैमिलीज में जन्म लिया इन साउथ अफ्रीका, और ऑफ माई बर्थ एंड माई कलर, मेरे जैसी फैमिलीज में जो पैदा हुए और जिनका मेरे जैसा कलर था, यानी कि जिनका स्किन का कॉम्प्लेक्शन डार्क था, जिन्हें ब्लैक पीपल बोलते थे साउथ अफ्रीका में उस टाइम पे. सो जो मेरे जैसे लोगों ने बर्थ लिया, मेरे जैसा जिनका कलर था, उन लोगों के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, आसान नहीं था कि वो अपनी दोनों ऑब्लिगेशंस को आराम से निभा सकें, क्योंकि उन्हें एक आम इंसान की तरह, एक आम नागरिक की तरह, एक सिविल सोसाइटी की तरह राइट्स नहीं थे टू लिव अ नॉर्मल ह्यूमन लाइफ. इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ color who attempted to live as a human being was punished and isolated. So अगर मेरे जैसे कलर वाले लोग अगर एक आम जिंदगी जीने की, अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा करने की कोशिश करते थे तो उन्हें पनिश किया जाता था. अगर वो नॉर्मल अपने राइट्स को समझ के, जैसे हर इंसान का राइट होता है एक नॉर्मल जिंदगी जीने का, वैसे जिंदगी अगर हम लोग जो हमें राइट्स होने चाहिए उनको पाने की कोशिश करते थे तो हमें पनिश किया जाता था, आइसोलेट किया जाता था. आइसोलेशन अकेला कर देना, जेल में डाल देना. इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू इन साउथ अफ्रीका a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. साउथ अफ्रीका में क्या होता था उस समय में, जब अपार्थीड का सिस्टम था, तो हमारे जैसे कलर वाले लोग अगर कोशिश करते थे एक आम जिंदगी जीने की और अपनी ऑब्लिगेशंस पूरा करने की, अपनी ड्यूटीज पूरा करने की, तो क्या होता था हमारे साथ, हमें पनिश किया जाता था और हमें आइसोलेट कर दिया जाता था. आइसोलेशन अकेले कर देना, अपनी फैमिली से अलग कर देना. अलग कैसे? जेल में डाल दिया जाता था. जेल इज एन आइसोलेटेड प्लेस, राइट? इन साउथ अफ्रीका अ मैन who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. So अगर कोई भी इंसान साउथ अफ्रीका में जो हमारे जैसा था, हमारे कलर से बिलोंग करता था, वो अगर अपनी नॉर्मल एक जिंदगी जीने की, एक राइटफुल लाइफ जीने की, नॉर्मल राइट्स क्या, एजुकेशन, नॉर्मल लोगों के साथ घुलना मिलना, एजुकेशन प्राप्त करना, एक अच्छी नौकरी करना, अपनी फैमिली के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करना, और अपने कंट्री के जो लोग हैं, अपने जैसे अपनी कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनके लिए कुछ बेहतर करने की अगर कोई कोशिश करता था, यानी कि किस तरह की कोशिश, ब्लैक्स की एम्पावरमेंट की, ब्लैक्स के राइट्स की अगर कोई बात करता था, अपनी कंट्री के लोगों के प्रति अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करने की कोशिश करता था, तो उसके साथ क्या होता था, उसे उसकी फैमिली से, उसके घर से अलग कर दिया जाता था, उसे आइसोलेट कर दिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था. यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है इनएविटेबली, विच मीन्स अनअवॉइडेबली. इट इज गिवन इन योर बुक ऑल्सो. जिससे अवॉइड नहीं किया जा सकता था, तो उसको डेफिनेटली ऐसी पनिशमेंट देते थे, उस पनिशमेंट को वो अवॉइड नहीं कर सकते थे, उसे राइप ऑफ, यानी कि उसे दूर कर दिया जाता था अपनी फैमिली से, राइट? सो व्हाट ही सेज नेक्स्ट, अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन. व्हाट इज ट्वाइलाइट? ट्वाइलाइट बेसिकली क्या होता है, जब सूरज ढल रहा होता है तो धीरे धीरे जो उसकी रोशनी कम होती है और वो जो एक सीन दिखता है उसे ट्वाइलाइट बोलते हैं. सो बेसिकली इट इज अ सिंबल ऑफ डिक्लाइन, राइट? गिरना, नीचे जाना, राइट? एंड रेबिलियन, रेबिलियन क्या होता है, जो लोग
कानून को नहीं मानते, जो देश का जो गवर्नमेंट होती है, जो कानून होता है, उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं, सो वो हो जाते हैं रिबेलियस पीपल और रिबेलियन जिसको बोल देते हैं। ठीक है, सो उस टाइम जो सिस्टम था गवर्नमेंट का वो था व्हाइट सुपरमेसी का सिस्टम, अपार्थीड का सिस्टम। सो जो लोग उसे फॉलो नहीं करना चाहते थे वो रिबेलियस हो जाते थे, रिबेलियंस बन जाते थे और उनको उनकी फैमिली से अलग कर दिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था और उसकी एग्जिस्टेंस बहुत ही डिक्लाइन कर दी जाती थी, उसे बहुत बुरे हालात में पहुंचा दिया जाता था। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. So नेल्सन मंडेला इज सेइंग कि स्टार्टिंग से मैं ऐसा नहीं था, मैं आजादी स्टार्टिंग से नहीं चाहता था, मैं अपनी फैमिली को ही प्रायोरिटी मानता था, मैं अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटी को अपनी फैमिली से ऊपर प्रायोरिटी नहीं देता था। बट जब मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि मुझे अपने लोगों के लिए कुछ करना है, तो जब मैं वो ऑब्लिगेशन अपनी पूरी करने की कोशिश करने लगा, उस स्ट्रगल की वजह से मैं एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई, एक अच्छा फादर या एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया, क्योंकि फिर मैं अपनी फैमिली के प्रति जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा नहीं कर पाया। तो जो ट्विन ऑब्लिगेशंस थी वो एक नॉर्मल सिविल सोसाइटी में इंसान पूरी कर सकता है, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में, जो उस वक्त के साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में अपनी ट्विन ऑब्लिगेशंस वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। पहले इन द बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ वो अपनी फैमिली के प्रति ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पा रहे थे, एंड फिर जब उन्होंने अपनी कम्युनिटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की कोशिश करी तो वो फिर सिर्फ वही कर पाए और वो अपनी फैमिली को टाइम और एफर्ट नहीं दे पाए अपना। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। मैं पैदा नहीं हुआ था एक उस भूख के साथ कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे फ्री होना है, क्योंकि छोटे बच्चे को शायद पता ही नहीं था कि वो फ्री नहीं है। राइट, लेट्स रीड। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। मैं पैदा ऐसा नहीं हुआ था कि मुझे आजादी चाहिए। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों को एक्चुअली पता ही नहीं होता है कि वो आजाद नहीं है। उसको आजादी क्या लगती है? घूमना फिरना, खेलना, दौड़ना, खाना पीना। राइट, सो नेल्सन मंडेला बताते हैं कि मैं भी एक ऐसा बच्चा था, मैं भी स्टार्टिंग से कोई आजादी नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं फ्री नहीं था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मुझे लगता था कि मैं फ्री हूं बिल्कुल। आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। जितना एज अ बच्चा मुझे पता था, जितनी चीजें मुझे पता थी उसके अकॉर्डिंग मैं फ्री ही था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, free to roast meals under the stars and ride the broad back of slow moving bulls। तो ये कुछ एक्टिविटीज थी जो एज अ चाइल्ड वो एंजॉय करते थे, अपनी मम्मी की हट के पास घूमना फिरना, और फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम। एक स्ट्रीम इज लाइक वाटर बॉडी, छोटी रिवर को हम स्ट्रीम कह देते हैं। सो अपनी मदर की हट के आसपास घूमना फिरना, खेलना, उस स्ट्रीम में स्विम करना, और जो उसके खाने की चीजें थी, यहां पर एक टर्म यूज हुआ है मीलिज, विच इज साउथ अफ्रीकन, एक फूड ग्रेन होता है साउथ अफ्रीका में जिसका ये नाम होता है, जिसे हम अफ्रीकन ज्वार भी बोलते हैं। ठीक है, सो एक वो अपना खाना होता था, उसको रोस्ट करने की फ्रीडम थी, यानी कि खाने पीने की, खेलने की, नदी में नहाने की फ्रीडम थी। तो ही यूज्ड टू फील लाइक I was born free. I was very happy in my life. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. जब तक कि मैं एक छोटा बच्चा था, बस अपने पेरेंट्स की, अपने फादर की बात सुननी होती थी, अपनी ट्राइब के, अपने कस्बे के कुछ रूल्स को फॉलो करना होता था, और इट वॉज लाइक ऑल गुड। कोई प्रॉब्लम नहीं थी लाइफ में। तो मुझे भगवान के बनाए हुए किसी नियम से भी कोई प्रॉब्लम थी, या इंसान के बनाए हुए रूल्स और रेगुलेशंस, किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि एज अ चाइल्ड मुझे पता ही नहीं था कि मैं फ्री नहीं हूं। मुझे लगता था कि मुझे खेलने कूदने की, खाने पीने की आजादी है, तो मैं फ्री हूं। देन व्हाट हैपेंड? थोड़े बड़े हुए नेल्सन मंडेला। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई
बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। लेकिन थोड़े बड़े हुए और मुझे एहसास हुआ कि जो बॉयहुड में मुझे लगता था कि फ्रीडम है वो तो एक इल्यूजन थी। व्हाट इज एन इल्यूजन? द मीनिंग इज गिवन इन योर बुक, समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इज नॉट। इल्यूजन इज भ्रम। हमें लगता है कि रियल है पर वो रियल नहीं होता। सो उनकी जो फ्रीडम थी, जो उनको बॉयहुड के टाइम फ्रीडम लगती थी, थोड़ा बड़ा होने के बाद उन्हें लगा ये तो फ्रीडम थी ही नहीं, ये तो इल्यूजन था। मुझे लगता था मैं फ्री हूं लेकिन मैं फ्री नहीं हूं। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. जब मैं बड़ा हुआ और मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी फ्रीडम मेरे पास नहीं है, तब मुझे फ्रीडम प्राप्त करने की जो भूख थी मेरे अंदर वो पैदा हुई। At first, as a student, I wanted freedom only for myself. थोड़े से बड़े हुए थे, एक स्टूडेंट थे, स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते होंगे, सो उस वक्त मुझे सिर्फ मेरे लिए फ्रीडम चाहिए थी। The transitory freedoms of being able to stay out at night. सो कॉलेज टाइम में सबको नाइट आउट का, बाहर घूमने फिरने का शौक होता है। सो बस मेरे लिए एज अ स्टूडेंट इतनी ही फ्रीडम इनफ थी कि मैं अपना पढ़ लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी है तो मैं रात को बाहर घूम फिर सकता हूँ अपने दोस्तों के साथ। रीड व्हाट आई प्लीज्ड, जो मैं पढ़ना चाहूँ मैं पढ़ सकता हूँ। एंड गो वेयर आई चूज, और जहां जाना चाहूँ वहां जा सकता हूँ। सो जब तक यंग थे, जब तक स्टूडेंट थे, तो सिर्फ अपने लिए फ्रीडम चाहिए थी, पढ़ने लिखने की, घूमने फिरने की, दैट्स ऑल। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms to achieve my potential of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. So जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो बस मेरी कितनी फ्रीडम मुझे चाहिए थी कि मैं एक अच्छी कमाई कर सकूं, एक अच्छा काम कर सकूं, जितनी मेरी पोटेंशियल है, जितनी मुझ में काबिलियत है, उसके अकॉर्डिंग मुझे एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, शादी कर सकूं, फैमिली बना सकूं और खुशी से रह सकूं एज अ लॉफुल पर्सन। सारे लॉ को नॉर्मल फॉलो करूं। एक ऐसा सिर्फ एक सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड था जब वो यंग थे। वो चाहते थे अपने लिए फ्रीडम और एक आम जिंदगी। सेल्फ सेंटर्ड भी नहीं कह सकते, बेसिकली हर इंसान, ज्यादातर सब इंसान यही चाहते हैं कि उनकी लाइफ अच्छी हो। तो नेल्सन मंडेला भी उस वक्त तक एक आम इंसान थे और वो यही चाहते थे। लेकिन कुछ समय बाद जब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया तो उस वक्त उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें सिर्फ अपनी फ्रीडम के लिए नहीं, अपने लोगों की फ्रीडम के लिए भी काम करना है। सो लेट्स सी व्हाट ही सेज इन द नेक्स्ट पार्ट। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। कि धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि सिर्फ मैं ऐसा नहीं हूं जो फ्री नहीं है, मेरे साथ के लोग, मेरे भाई बहन जो भी ब्लैक पीपल थे, वो सब भी तो फ्री नहीं है। सो थोड़ा सा ज्यादा मैच्योरिटी आने लगी, फ्रीडम के लिए हंगर बढ़ने लगी, ना सिर्फ खुद की फ्रीडम बट अपने सारे लोगों की फ्रीडम के लिए। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. सिर्फ मेरी फ्रीडम curtail नहीं हुई थी. What is the meaning of curtail? It's given in your book. Reduced. सिर्फ मेरी जो फ्रीडम थी सिर्फ उसको कम नहीं किया गया था, उसको सिर्फ नहीं छीना गया था, बट मेरे जैसे दिखने वाले हर इंसान का जो फ्रीडम था वो छीन लिया गया था। सो अब डीप रियलाइजेशन होनी शुरू हो गई है कि अब फ्रीडम चाहिए सिर्फ खुद के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, हमारे जैसे, हमारी कम्युनिटी के सब लोगों के लिए। That is when I joined the African National Congress and finally African National Congress Party joined की नेल्सन मंडेला ने। And that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. तो जो हंगर थी वो बढ़ गई, अब सिर्फ खुद के लिए फ्रीडम नहीं चाहिए, अब मुझे मेरे सारे लोगों के लिए फ्रीडम चाहिए। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home,
that forced a life-loving man to live like a monk. So what Nelson Mandela says here कि उसकी वजह से जो फिर मैंने अपनी पार्टी ज्वाइन कर ली, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जब मुझ में हंगर बढ़ गई कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं अब अपनी कम्युनिटी के हर इंसान की फ्रीडम के लिए लड़ूंगा, तो उस वक्त उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया. क्या चेंज आया कि जो अब उनको फ्रीडम खुद के लिए चाहिए थी वो सबके लिए चाहिए. उनकी जो एक नॉर्मल लाइफ जो वो चाहते थे कि अपनी डिग्निटी से, सेल्फ रिस्पेक्ट से वो जिए, अब वो उन्हें अपने सारे लोगों के लिए चाहिए. व्हाट इज एनिमेटेड? एनिमेटेड के दो मीनिंग्स होते हैं. एक एनिमेशन जो कार्टून्स एनिमेशन होता है, यहां एनिमेशन का जो मतलब है वो है फुल ऑफ एनर्जी, जोश भरना. ठीक है. सो जो एक डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट मैं खुद के लिए चाहता हूं वो मैं अपने सारे लोगों को के लिए चाहता हूं. इस चीज के लिए उनकी लाइफ में बहुत जोश भर गया एंड उन्होंने उनकी जिंदगी को बहुत ट्रांसफॉर्म कर दिया, बहुत ही चेंज कर दिया, पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया. कैसे कि जो एक फ्राइटेंड यंग मैन था, जो कि एक डरपोक, एक आम यंग मैन था, उससे वो एक बोल्ड वन बन गए, एक बोल्ड इंसान बन गए जो अपने राइट्स के लिए बोल सकते थे, अपने राइट्स के लिए लड़ सकते थे. ट्रांसफॉर्म्ड अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी. व्हाट इज एन अटॉर्नी? अ लॉयर, एन एडवोकेट. जो नेल्सन मंडेला थे वो पहले एक अटॉर्नी थे, एक लॉयर थे, एडवोकेट थे. सो लॉ अबाइडिंग ऑब्वियसली एक एडवोकेट है तो वो लॉ की जो रूल्स हैं देश के, जो लॉ है उसको अबाइड करेंगे, फॉलो करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे. सो एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी से मैं चेंज होकर, ट्रांसफॉर्म होकर हो गया क्या? एक रेबेलियन बन गए वो. एक तरह से उस टाइम के हिसाब से वो गवर्नमेंट के, लॉ के अगेंस्ट खड़े हो गए. राइट. सो ही बिकेम अ क्रिमिनल इन द आइज ऑफ लॉ एट दैट टाइम. क्योंकि उस वक्त लॉ क्या था? अपार्थीड. अपार्थीड के अकॉर्डिंग, अपार्थीड के खिलाफ बोलने वाला इंसान क्रिमिनल की तरह माने जाने लगा. सो दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड. अपनी फैमिली से प्यार करने वाला एक हस्बैंड, एक आम इंसान, चेंज हो गया, चेंज इनटू अ मैन विदाउट अ होम. दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क. एक ऐसा इंसान जिसे जिंदगी से बहुत प्यार था, उसको एक मॉन्क की तरह, मॉन्क इज साधु संत, जिसको अपनी फैमिली से कोई लगाव नहीं होता, जो अपनी फैमिली से दूर रहता है, उसको हम मॉन्क कहते हैं, साधु कहते हैं, संत कहते हैं. सो एक अपनी फैमिली के साथ रहने वाला, फैमिली से प्यार करने वाला इंसान चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, एक मॉन्क की तरह अपनी फैमिली से दूर रहने लग गया. आई एम नो मोर वर्चुअस or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. So मैं अपने आप को बिल्कुल भी अब किसी भी इंसान से ज्यादा वर्चुअस नहीं मानता. वर्चुअस इज भाग्यशाली. तो मैं किसी भी नेक्स्ट इंसान, किसी भी दूसरे इंसान से ज्यादा भाग्यशाली नहीं हूं और ना ही सेल्फ सेक्रीफाइसिंग हूं, क्योंकि हर इंसान मेरे जैसा सेक्रीफाइस अब कर रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों ने मिलकर सेक्रीफाइस किया, तब जाकर वो फ्रीडम मिली. सो फाइनली जो थोड़ी बहुत लिमिटेड फ्रीडम उन्हें अलाउड भी थी, वो उसको भी एंजॉय नहीं कर पा रहे थे. क्यों? क्योंकि हर वक्त उन्हें फील होता था कि जो थोड़ी बहुत लिमिटेड फ्रीडम उनको मिली है वो उनके और लोगों को नहीं मिल पा रही है. और अब उन्हें सिर्फ खुद के लिए फ्रीडम नहीं चाहिए थी, सब लोगों के लिए फ्रीडम चाहिए थी. तो वो अपनी उस लिमिटेड फ्रीडम को भी एंजॉय नहीं कर पा रहे थे. फ्रीडम इज इनडिवाइजिबल. फ्रीडम को डिवाइड नहीं किया जा सकता कि कुछ लोगों को मिल जाए और कुछ लोगों को ना मिले. वो सबको मिलती है तो ही फ्रीडम फ्रीडम है, वरना फ्रीडम है ही नहीं. फ्रीडम इज इनडिवाइजिबल. द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम. कि मेरे लोगों में से किसी एक पर भी अगर चेन्स हैं, उसको फ्रीडम नहीं है, तो मैं मानता हूं कि सब लोगों पर चेन्स है, किसी को भी फ्रीडम नहीं है. I've lost where I was. Yeah, the chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. So मैं ये मानता हूं कि किसी एक इंसान पर भी अगर चेन है तो वो फिर सब पर है,
और मेरे जैसे सब लोगों पर अगर चेन है तो मैं मानता हूं कि वो मुझ पर भी है। यानी कि एक इंसान की फ्रीडम भी अगर छीन ली जाती है तो मानकर चलिए पूरी सोसाइटी की फ्रीडम छीन ली गई है। और अगर पूरी मेरी सोसाइटी की फ्रीडम, मेरी कम्युनिटी की, मेरे जैसे और लोगों की फ्रीडम अगर जा चुकी है तो मैं मानता हूं कि मेरे ऊपर भी चेन्स यानी कि बेड़ियां लग गई हैं, मैं भी फ्री नहीं हूं। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। अब यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आती है। नेल्सन मंडेला फिर से एक बहुत बड़ी इंसानियत की महानता की बात करते हैं। हालांकि ऑप्रेसर कौन होता है? जो दूसरे को दबाता है। ऑप्रेस्ड कौन होता है? जो दबता है। सो व्हाइट पीपल वर द ऑप्रेसर एंड द ब्लैक पीपल वर बीइंग ऑप्रेस्ड। ठीक है। सो यहाँ एक बहुत बड़ी महानता की, एक बहुत बड़ी इंसानियत की बात करते हैं। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं मानता हूं कि सिर्फ वो बेड़ियों में बंधा हुआ नहीं है जो ऑप्रेस्ड हो रहा है, बल्कि जो ऑपरेशन कर रहा है, दूसरे इंसान को दबा रहा है, वो भी बेड़ियों से जकड़ा हुआ है हेट्रेड की। उसको भी छुड़वाने की जरूरत है, उसको भी फ्री करने की जरूरत है। सो नेल्सन मंडेला यहाँ बहुत बड़ी बात कहते हैं। इसका मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इस पे क्वेश्चन आता है। न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। जितना मैं श्योर हूं कि ऑप्रेस्ड जो हैं, जो दबे हुए लोग हैं, उनकी फ्रीडम जरूरी है, उतना ही मैं श्योर हूं कि उनकी भी फ्रीडम जरूरी है जो लोग दबा रहे हैं, जो लोग अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि वो अन्याय क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनमें हेट्रेड भरी हुई है, और जो हेट का शिकार है वो खुद अपनी जो नफरत है उसकी बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। सो दोनों को ही आजादी की जरूरत है। सो इतनी ज्यादा ऑपरेशन झेलने के बाद, इतना ज्यादा बुरा व्यवहार जो व्हाइट लोगों ने किया उसको झेलने के बाद भी नेल्सन मंडेला चाहते हैं कि ब्लैक्स भी आजाद हों और व्हाइट्स भी आजाद हों, दोनों खुशी से शांतिपूर्वक रहें। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। जो इंसान किसी और इंसान की फ्रीडम को छीन लेता है वो खुद भी फ्री नहीं है, वो खुद भी एक प्रिजन में है, एक जेल में है। किसकी जेल में है? एक शैतान की जेल में है जिसका नाम है हेट्रेड, नफरत। वो नफरत नाम के शैतान की जेल में बंदी बना हुआ है, वो भी फ्री नहीं है। It's just like you simply start hating somebody or something without any reason. You cannot give a good reason for that. So that is prejudice. You know, for example, I am not at all like that, but just an example. If I say that, you know, I just hate all the boys just because they are boys, there is no proper reason for that. It's not like all the boys are good or all the boys are bad, but it is just my prejudice against boys. So इतनी ज्यादा नफरत अगर किसी के, it's not like that, I'm again repeating, it's just an example I used. So अगर किसी को विदाउट एनी रीजन किसी के प्रति, किसी चीज के प्रति या किसी इंसान के प्रति प्रिजुडिस हो जाए, इतना ज्यादा नफरत हो जाए जिसका कोई रीजन भी ना हो, रीजन इन द सेंस कोई रीजनेबल रीजन ना हो जिसको जस्टिफाई किया जा सके, ऐसा कोई रीजन नहीं है। लेट्स से इफ आई से आई हेट अ थीफ, तो आई कैन हेट अ थीफ बिकॉज मेरे पास रीजन है, उसने चोरी की है। बट यू नो, इफ आई कैन नॉट जस्टिफाई लाइक आई हेट ऑल द बॉयज, दैट इज लाइक रॉन्ग, दैट इज प्रिजुडिस, right? So just an example. Next he says, I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. जितना मैं श्योर हूं इस बात को लेके कि अगर कोई मुझसे मेरी फ्रीडम छीन ले तो मैं फ्री नहीं हूं, उतना ही मैं श्योर हूं इस बात को लेकर कि जो इंसान दूसरे इंसान की फ्रीडम छीनता है, यानी कि मैं भी अगर किसी और की फ्रीडम छीन लेता तो भी मैं फ्री नहीं होता। यानी कि जो फ्री नहीं होता, जिसकी फ्रीडम छीनी जाती है, जो ऑप्रेस्ड होता है, उसको तो फ्रीडम की जरूरत है ही, लेकिन साथ के साथ जो ऑपरेशन करता है, जो दूसरे इंसान की फ्रीडम को छीन लेता है, उसको भी फ्रीडम की उतनी ही जरूरत है, क्योंकि वो एक प्रिजनर है हेट का। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है अभी जो नेल्सन मंडेला ने लास्ट में कही है। दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ दिस चैप्टर, या दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ दिस चैप्टर।
It is very important what Nelson Mandela says. जो इंसान दूसरे इंसान की फ्रीडम को छीन लेता है, ऑपरेशन करता है, दबाता है दूसरे इंसान को, वो इंसान भी अपनी ह्यूमैनिटी को खो देता है. रॉब्ड, चोरी हो जाना, उस इंसान की ह्यूमैनिटी भी चोरी हो जाती है, दूर हो जाती है उससे. और जो इंसान ओप्रेस्ड होता है वो तो डेफिनेटली एक नॉर्मल ह्यूमैनिटी वाली लाइफ नहीं जी सकता, क्योंकि उसे अपने राइट्स के लिए फाइट करना पड़ता है. सो अगर ओप्रेशन होता है तो ओप्रेस्ड भी फ्रीडम नहीं, ओप्रेस्ड के पास भी फ्रीडम नहीं होती, और ओप्रेसर जो ओप्रेशन करता है उसके पास भी फ्रीडम नहीं होती. दोनों की ही ह्यूमैनिटी उनसे दूर हो जाती है. सो दोनों को ही फ्रीडम की जरूरत है. और इसी के साथ ही वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर, एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू द नेक्स्ट चैप्टर और पोएम, वट एवर इट इज. लेट्स सी व्हाट इट इज. आई थिंक इट्स अ पोएम. या, इट्स अ पोएम, A Tiger in the Zoo. So we will study it in the next class. So till then, please be at home, take care of yourselves, take care of your families, stay safe. Thank you. Have a good day.